Hello students. In the last lecture, we studied about the classification of the materials on the basis of energy band diagram. We learned that every solid has its characteristics energy band diagram, and on the basis of that energy band diagram, the materials are classified into insulators, semiconductors and conductors. Today, we are going to see some more basic concepts related to semiconductor, in which we will first learn about what are covalent bond. So, the bond which is formed due to sharing of electrons between two similar or dissimilar atoms is known as covalent bond. The covalent bonds are very strong classical electron pair bond and has strong directional properties. The electrons in the bond are partially localized in the region between the two atoms joining the bond. And according to Pauli's exclusion principle, we know that no two electrons can have the same state. So, this pair which is shared in the bond, the two electrons have antiparallel spin. We know that the most common semiconductors we use are germanium and silicon. Germanium has 32 electrons and silicon has 14 electrons in its outermost orbit. Okay, if we see its electronic configuration, then there are 4 electrons in its outermost shell. So हम ये जो मटेरियल्स है जर्मेनियम और सिलिकॉन इनको बोलते हैं टेट्रावैलेंट and because of that it needs extra 4 electrons to attain the stability. तो लास्ट शेल में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड टू अचीव द स्टेबिलिटी मीन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट उन्हें और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. सो व्हाट दे डू, इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ इट्स नेबरिंग 4 एटम्स. मतलब एक सिलिकॉन एटम जो है वो क्या करता है, नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है एज शोन इन द फिगर. ओके, सो अ सिंगल सिलिकॉन एटम शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद द neighboring silicon atoms by forming 4 covalent bond. Okay, now since all the 4 valence electrons are covalently bonded to the 4 neighboring atoms, the crystal act as perfect insulator at 0 Kelvin. तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं. सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आपको कंडक्शन के लिए एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्रांगली अटैच्ड रहते हैं टू द कोर एटम. सो वी डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन. तो इसलिए हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जो सेमीकंडक्टर्स है वो बिहेव करते हैं लाइक इंसुलेटर्स. इफ़ वी हैव टू अचीव कंडक्टिविटी in materials like germanium and silicon, then to provide that conduction electrons the covalent bonds must be broken. तो जब तक ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हमारे पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अबाउट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन. तो जब हम इतनी एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करेंगे, जब हम इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देंगे क्रिस्टल को, तो वो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे एंड वी विल गेट द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. लेट्स मूव अहेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अ कंसेप्ट दैट इज़ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सो when covalent bond is formed by sharing of electron, this electron are not available for conduction.
मैंने आपको बताया कि जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होती है तो वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं कोर एटम से, इसलिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं फॉर कंडक्शन। हमें वो बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं टू मेक देम फ्री। तो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड आर नथिंग बट नोन एज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, thus at absolute zero semiconductors are insulators because of non-availability of electrons. Now what are conduction electrons? That are nothing but free electrons. तो free electrons हमें कैसे मिलते हैं? When external energy, maybe thermal energy, is supplied to the semiconductors, then electron gets sufficient energy to break the covalent bond. तो क्या होता है जब हम सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी अगर हम देते हैं क्रिस्टल को तो वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड आफ्टर ब्रेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री and conduction is now possible, and these electrons which we get after breaking of bond are known as free electrons. सो वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में प्रेजेंट है वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, उसको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमको बॉन्ड ब्रेक होने के बाद मिलते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इनसाइड द क्रिस्टल, इसीलिए हम उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज होल्स। सो व्हाट आर होल्स? सो व्हेनेवर अ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, electrons from covalent bonds becomes free, okay, that are known as free electron. Thus at the site of broken covalent bond vacancy is created. तो जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है अब अगेन वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, मतलब वहाँ पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुई है। सो द रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी। पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उससे क्या होगा कि नियर अबाउट अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो जंप करेगा उस वैकेंसी पे। इट्स जस्ट लाइक दैट वैकेंसी इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड हैंस वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी. दिस वैकेंसी कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट बॉन्ड. This vacancy of electron which acts as a positive charge is called as hole. इसी को हम बोलते हैं hole. Once the hole is created, it moves in the crystal like electrons but in opposite direction. Magnitude of charge on both electron and hole is same. दोनों पे जो चार्ज होता है अगर हम मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जितना होता है उतना ही होल पे भी होता है. सो वो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन और होल पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड यहाँ पे आपको एक होल मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है. ओके, अब देखो होल एक्चुअल में क्या है? होल इज़ नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो फिर वो ट्रैवल कैसे करता है? तो आप इस डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज़ हम कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो रो है, फर्स्ट रो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो होल की पोजीशन यहाँ है. अब क्या होगा, जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होगा और ये यहाँ पे चला जाएगा. तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? होल. और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप हुआ है. अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ने जो है यहाँ पे इस साइड ट्रांजिशन किया है, जबकि जो होल है उसका ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. सो यू कैन सी दैट जैसे जैसे यहाँ पे होल मूव हो रहा है, hole is moving towards the hole is moving towards the negative, while the electron is moving towards the positive terminal of the battery. तो इस स्टेप देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 स्टेप अहेड मूव हुआ, यहाँ पे होल भी 1 स्टेप इधर मूव हुआ. नेक्स्ट पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा
तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल की वैकेंसी एंड होल वैकेंसी, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस वे यू कैन सी दैट electron are moving towards the positive direction while the holes are moving towards the opposite, that is towards the negative terminal. ओके इसलिए हम बोलते हैं कि होल और इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करते हैं, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो क्या रहता है, सेम. ओके नाउ अगर हम देखते हैं कंडक्शन इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. सो अगर आपको पता होगा कि कंडक्टर है वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप ऑफ चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स है वहाँ पे दो टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर है. फर्स्ट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा इज़ द होल. होल और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है ये हमने डिटेल में देखा. सो in absence of electric field, charge carrier moves randomly in the crystal, but when electric field is applied, the motion of the charge carrier becomes directional. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली आपको पता होगा कि जो भी फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो रैंडमली मूव होते हैं, इसलिए नेट जो आउटपुट है वो ज़ीरो होता है. लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे फ्री चार्ज कैरियर्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमको वहाँ पे वेक्टर एडिशन से हमको वहाँ पे आउटपुट मिलता है. ओके, सो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स देयर आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ करंट फ्लो. पहला, current flow in the conduction band due to free electrons, and दूसरा flow of current due to holes in the valence band. Okay, so in semiconductor both this current flows at the same time as shown in the figure. The free electrons are drifted towards the positive terminal of the battery while the holes will move towards the negative end. So in the diagram you can see that there is a current in the circuit due to free electron as well as holes. Okay, so this is all about today's lecture. In the next lecture we will learn about the different types of semiconductor. Till then, bye and take care.